میں تمام میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ ان غیر معمولی حالات میں بھی آپ ہماری آواز عوام تک پہنچانے کے لیے فرنٹ لائنز پر موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور آج کے دن پاکستان کی ایک مایہ ناز شخصیت طارق عزیز صاحب ان کی وفات ہوئی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور بہت سی حسین یادیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے، اس ملک کے تمام شہریوں کے لیے. آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کے فاضل جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ڈاکیومنٹ جمع کرایا. انہوں نے ایک ایسا ڈاکیومنٹ جمع کرایا کہ جس کے اندر انہوں نے سورس کو بھی کوٹ کیا اور یہ کہے بغیر کہ کوئی شخص جن کے انہوں نے نام اس ڈاکیومنٹ میں لیے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تمام شخصیات جن کے نام انہوں نے اس ڈاکیومنٹ میں لکھے سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ کے سامنے انہوں نے پیش کیے اور کہا کہ ان تمام حضرات کے جن میں وزیر اعظم پاکستان سر فہرست ہیں کہ ان کی غیر ممالک میں برطانیہ میں جائیدادیں ہیں. سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج کی جانب سے اس طرح کا ڈاکیومنٹ سپریم کورٹ میں جمع کرانا بہت بڑی خبر ہے. پاکستان کی اپوزیشن خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کو بہت ہی اہمیت دیتی ہے اور ہم باضابطہ طور پر سپریم کورٹ سے یہ درخواست کرتے ہیں، پیپلز پارٹی یہ درخواست کرتی ہے کہ ایکویلٹی بیفور لا، ہر کسی شہری کے ساتھ قانون کا مساوی سلوک کرنا یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پاناما کا کیس ہو، اسی طرح کے چیزوں کے اوپر جے آئی ٹی بنائی گئی، چاہے وہ آصف زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب کا کیس ہو، جے آئی ٹی بنائی گئی. ہم یہ درخواست کرتے ہیں باضابطہ طور پر فاضل سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے جو اس مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں کہ عین اسی طرح جس طرح میں نے یہ 2 بڑے کیسز کا حوالہ دیا کہ ماضی میں جن میں جے آئی ٹیز بنائی گئیں، یہ بھی ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. بہت بڑی خبر ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے رفقا، ان کے کیبنٹ کے مشیران، ان کے اسپیشل اسسٹنٹس، ان کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں جو کہ انڈکلیئرڈ ہیں، ان کے اوپر بھی اسی طرح جے آئی ٹی بننا چاہیے جس طرح میاں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کے کیس اور بلاول بھٹو صاحب کے کیس میں جے آئی ٹی بنائی گئی. تحقیق ہونی چاہیے. ہم قطعاً وہ روش اختیار نہیں کرتے اور نہ ہم کریں گے کہ جو پی ٹی آئی نے ماضی میں کی، جس میں انہوں نے صرف الزامات کی بنیاد پر لوگوں کو مورود الزام ٹھہرایا، ان کو مجرم بنا کر، ان کو چور ڈاکو کہہ کر عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. ہم قطعاً اس طرح کی الزام زنی نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر ضروری ہے کہ تحقیقات ہوں اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئے کیا واقعی ان صاحبان کی جن کا ذکر ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی درخواست کے اندر، کیا ان کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں یا نہیں ہیں. اس ملک کی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ جن کو انہوں نے اس مسند پر بٹھایا کیا واقعی وہ اپنے منصب کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اور حالات اور واقعات مزید گمبھیر اس بات پر ہوتے ہیں
शक मजीद मुस्तहकम इस बात पर होता है कि जब वफाकी वुज़रा टीवियों पर बैठ कर कहें कि काबीना के अंदर मौजूद आधे से ज़ायद अफराद को तो वो जानते तक नहीं। ये कौन स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, ये कौन लोग हैं जो इस वक्त इस मुल्क का दारोमदार जिनके हाथ में है, जिन्होंने अपना ब्रीफकेस बंद करना है, अपना सामान पैक करना है और जिन्होंने उड़ान भर लेनी है। चाहे वो स्टेट बैंक के गवर्नर हो, चाहे वो मुशीर खजाना हो, चाहे वो जुल्फी बुखारी साहब हो और दर्जनों और ऐसे स्पेशल असिस्टेंट्स कि जिनके बारे में इस कौम को कोई पता नहीं कि उनके कितने एहसासे हैं, उनकी क्या नेशनैलिटीज़ हैं और उनके एहसासों में पिछले 2 सालों में जब से ये हुकूमत आई है कितना इजाफा हुआ है और कितना नहीं हुआ। हम बतौर सियासतदान हर वक्त स्क्रूटनी का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हम जब इलेक्शन लड़ते हैं अपने कागजात नामजदगी के अंदर हर किस्म की डिटेल अपने अहले खाना की, अपने बच्चों की देने के पाबंद होते हैं कानून के तहत। लेकिन ये कौन लोग हैं कि जो इस वक्त इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं, काबीना में मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में कोई किसी को पता नहीं और वफाकी वुज़रा ऑन रिकॉर्ड हैं जो कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं कि ये कौन कौन लोग हैं जो काबीना में बैठे हुए हैं। इस हुकूमत ने इस मुल्क के हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला किया, उसको ताबे करने की कोशिश की। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर भी जो हमला है वो सिर्फ हमला उनके ऊपर नहीं है, ये इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को ताबे करने की कोशिश है। जिस तरह इस मुल्क में सहाफत का गला घोंटा गया, जिस तरह इस मुल्क में सहाफियों को जेलों में डाला गया, इस मुल्क के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क के जो इस वक्त मुदीर है, मालिक है, वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। पाकिस्तान मजीद इस तरह नहीं चल सकता। मीडिया का काम है लोगों को बेनकाब करना और अपोजिशन का काम है कि हुक्मरानों को कटहरे में खड़ा करना। हम इस तर्ज अमल की जो तर्ज अमल सुप्रीम कोर्ट के साथ इख्तियार किया गया उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि ये इंक्वायरी जल्द अज जल्द हो, एक JIT बनाई जाए जो इस चीज़ की तहकीक करे कि आया सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किया है, जो उन्होंने सबूत पेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10 रुकनी बेंच के सामने, आया वो दुरुस्त है या नहीं है। ये हमारा बाज़ाब्ता मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस मेरे साथ है उसमें एक मुद्दे पर बहुत फोकस है जज साहिबान का कि बदनीयती, अगर ये बदनीयती एस्टेब्लिश हो जाती है, ये बदनीयती सदर ममलिकत की होगी, वज़ीर आज़म की होगी, काबीना की होगी या किसी इंडिविजुअल की होगी। ये बदनीयती उनकी होगी कि जिन्होंने इस रेफरेंस को बनाया, जिन्होंने इस रेफरेंस को ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जासूसी की। किस इख्तियार के तहत किस कानून के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान की जासूसी करने की कोशिश की। जो चीज़ FBR को देखनी चाहिए थी कानून के तहत, वो ARU कैसे देख रहा है, वो एसेट रिकवरी यूनिट कैसे देख रहा है। उनके पास इस किस्म का कोई कानूनी इख्तियार मौजूद नहीं और अगर उन्होंने ये किया तो उन्होंने खिलाफ कानून कदम उठाया और ये वाज़ेह तौर पर इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को सबड्यू करने की कोशिश है। और वो तमाम हजरात जो इस सारे खेल का हिस्सा हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ताबे किया जाए अपनी मंशा के तहत, वो सारे इसके अंदर कैफरे किरदार पहुंचने चाहिए और मुजरिम हमारी नज़र में तसव्वुर किया जाए। तो भाई जो इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, जो फॉर्म जमा होते हैं, उसमें तमाम ये चीज़ें डिक्लेयर करना लाजिम होता है। वज़ीर आज़म, रुकन कौमी असम्बली भी है, अगर उनका नाम आ रहा है तो आप समझते हैं कि उन्होंने अपने एहसास से इलेक्शन कमीशन से भी छुपाए हैं और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन में भी जाएगी कि इस मामले की तहकीकात की जाए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गलत बयान किया? देखिए, हम ECP ज़रूर जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये नुक्ता ज़रूर उठाएंगे, लेकिन माजरत के साथ इलेक्शन कमीशन ECP की जो पिछले चंद सालों की जो प्रोग्रेस है वो आपके सामने है। एक केस है फॉरेन फंडिंग केस, उसके अंदर ऐसे सबूत मौजूद हैं कि जो अनडिनाइबल है, जो अनडिस्प्यूटेबल है कि बैरून मुल्क से PTI के अकाउंट में पैसे आए और कानून के तहत ये फंडिंग लेना जुर्म है। उसके ऊपर अभी साल गुजर चुके हैं, कोई फैसला नहीं हुआ। हम ECP के पास जाएंगे ज़रूर, लेकिन हमें ECP से कोई ख़ास तवक्को नहीं है। ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर तहकीकात का JIT फॉर्म करने का ऑर्डर दे सकती है। माजी में इसी तरह के मामलात हुए, JITs बनाई गई, इस मुल्क के सीनियर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको कटहरे में खड़ा किया गया, तो इस वक्त मामला डिफरेंट क्यों हो? वही सलूक होना चाहिए, वही तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए जो तरीकाकार माजी में इख्तियार किया गया, जिसके प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। एक JIT बने, वो वजीर आजम से इस चीज़ की तहकीक करे कि आया उनके जिस तरह काजी फायज ईसा साहब ने जो डॉक्यूमेंट जमा कराया है, क्या उनकी बैरून मुल्क 6 जायदादें हैं या नहीं है। स्पेशल असिस्टेंट से तहकीकात करे और उस तहकीकात के बाद कौम को आगाह करे कि हाँ वाकई इसके अंदर कोई खिलाफ कानून काम हुआ है या नहीं हुआ। अभी आपने तस्करा किया कि बाद स्पेशल असिस्टेंट्स और मुशीरान ऐसे हैं जो मकसद उठाएंगे, अपना ब्रीफ केस बंद करेंगे और बाहर चले जाएंगे। हफीज़ शेख साहब तो आपके साथ भी रहे हैं, उस वक्त ही आपने क्यों नहीं सोचा? हमने हफीज़ शेख साहब को जिस वक्त अपॉइंट किया, ये आपका दुरुस्त आपने बात उठाई, उसके बाद हमने उन्हें अपने मनसब से हटाया भी। सलीम मांडवी वाला साहब को उनकी जगह वज़ीर ख़जाना बनाया भी, क्योंकि हमें उन तमाम चीज़ों का एहसास हो चुका था कि जिस तरह उन्हें एक माशी एक्सपर्ट बनाकर हमारे सामने पेश किया गया कि ये मुल्क की मईशत को सुधार लेंगे, हमें बहुत जल्द पता चल गया कि इन तिलों में वो तेल नहीं है। और आज इस मुल्क की मईशत देख लें, आज इस मुल्क की मईशत, वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स गुजार खुद नहीं है और इस मुल्क के अवाम के ऊपर टैक्स नाफिज करने चले हैं। अगर वो पाकिस्तान में टैक्स गुजार हैं तो अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स अवाम के सामने, मीडिया के सामने पेश करें, बताएं कि वो FBR को पिछले 2 सालों में जब से वो मुशीर ख़जाना बने हैं उन्होंने कितना टैक्स अदा किया है। अगर वो खुद टैक्स नहीं देते तो पाकिस्तान की अवाम पर टैक्स लगाने का उनके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं। आपके सामने उनको उनके क्रेडेंशियल्स किसने पेश किए? हमारे सामने उनको बहुत उस वक्त लोग थे, अखबारात के अंदर लिखने वाले भी मौजूद थे जो कहते थे कि बड़े इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बड़ी माशी एक्सपर्ट हैं। तो हमने कहा कि चलें देख लेते हैं, लेकिन बात तो और हम उनकी माशी कारकर्दगी से किसी सूरत मुतमईन नहीं हुए, इसीलिए उनको रवाना किया और उनकी जगह सलीम मांडवी वाला साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया।